Good morning, students. Sixth class. Welcome again to your science class. And students, we were reading about your seventh chapter in science. know about the plants around us. और उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे. Now we are reading about the parts of plants, and we have already learned a part of plant which is stem, and now we are reading about the second structure or second part of plant which is leaves. So for know the leaves or their work, we do a activity to here. Leaves also have another function. Let us study this. देखते हैं क्या है लीव के और फंक्शन. लीव्स के जो फंक्शन है वो क्या है. एक्टिविटी 5. and for do the activity we would require a leaf, sprit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for the activity. So first of all, for the do activity, take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. ठीक है. सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें लीफ डालकर, एक ग्रीन लीफ डाल करके, और उसको उसमें स्पिरिट भरेंगे इस तरह से कि पूरी तरह से डूब जाए लीफ इसमें. लाइक दिस. लुक एट हियर. दिस इज द टेस्ट ट्यूब, एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब this leaf is placed and poured with the spirit. Now we place the test tube in a beaker with the half pour of water and then heat it. So note, since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class. Now place the test tube in a beaker. I told you already that place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. और जब तक गर्म करेंगे बीकर के जल को, जब तक कि स्पिरिट में सारा कलर, पत्ती से हरा कलर निकल कर सारा स्पिरिट में नहीं आ जाए टेस्ट ट्यूब में. टेक आउट द लीफ केयरफुली. अब जो लीफ है उसको केयरफुली निकाल लेंगे एंड वॉश इट इन वाटर, और इसको पानी से धोएंगे. प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. अब इसको वॉच ग्लास में निकाल करके और इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे. फिगर 7.12 ये रहा इस तरह से, लाइक दिस, है ना. ब्लू ब्लैक पर्पलिश कलर्ड लीफ हो जाएगी ये. सो गो अहेड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या देखा. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन क्लास, डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अब इस जो प्रेक्षण को आप उन प्रेक्षणों से मिलाइए जो आपने पार्ट 2 में किए थे. बच्चों, पार्ट 2 में हमने देखा था ना न्यूट्रिएंट्स, फूड न्यूट्रिएंट्स देखे थे हमने, और फिर फूड न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने के लिए हमने वी हैव डन मैनी ऑफ एक्टिविटीज़. उनमें से एक एक्टिविटी हमने की थी फॉर द टेस्टिंग ऑफ स्टार्च. तो ये वही एक्टिविटी है. वैसे ही प्रेक्षण आएंगे हम when the drop the iodine solution on the starch containing food, then it will turns blue black colored. तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी पत्ती के ऊपर क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे. ठीक है. डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट. अगर इफ़ लीफ हैज़ शोज द कलर ब्लू ब्लैक dark color, then it is confirmed that there is starch is present. Presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it. In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Yes, we saw that the raw potato slice also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. पोटैटोज़ में ये जो स्टार्च है वो लीव्स से एक आकर इकट्ठा हो जाता है.
leaves prepare their food in the presence of sunlight. We also know that leaves prepare their food in the presence of sunlight by a process which is called photosynthesis, and a green colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. We have already done, or we have already learned this process in previous chapters. Oxygen is given out in this process. हम जानते हैं इस process में, photosynthesis के process में carbon dioxide is taken and oxygen is released out. In this process, the food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. और जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है वो पौधे के different part में जो है वो इकट्ठा हो जाता है. We have seen that the stem supplies leaf with water. हमने देखा कि stem जो है वो leaves में water supply करता है. The leaf uses the water to make food. और leaves जो है वो इस पानी को भोजन बनाने के लिए यूज़ में लेती है. स्टूडेंट्स, द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और यही पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लीव्स से निकलता है. हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर. तो किस तरह से स्टेम और जो लीव्स है वो पानी प्राप्त होता है उनको देखेंगे. दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन. और ये जड़ों में कहाँ से आता है, रूट्स में ये पानी कहाँ से आता है. दो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न द नेक्स्ट पार्ट, और वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स विच इज़ रूट. लुक एट फिगर 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो वाई. देखिए फिगर 7.13 में कि कौन जो अपने पौधे को पानी जो है वो ढंग से दे रहा है या अच्छे से दे रहा है, सही तरीके से दे रहा है. तो हियर इज़ द बूझो एंड पहेली, एंड both are watering in their plants. Which part of the plant is in the soil? Obviously we know that the root is in the soil. Let us learn more about this part from the following activities. चलिए इस part के बारे में अगली एक्टिविटी से और अधिक जानेंगे. You would require 2 pots. आपको किसकी ज़रूरत होगी? 2 pots की यानी गमलों की. some soil, कुछ मिट्टी, ठीक है, खुरपी फॉर डिगिंग, खोदने के लिए, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर. पानी की, कैंची की या ब्लेड की, सॉइल यानी मिट्टी की, खोदने के लिए खुरपी और 2 पोट. दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स. ये एक्टिविटी जो है 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में की जानी चाहिए. सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट विद रूट्स. आप इसके लिए जो है वो वीड्स यूज़ में ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि पौधों को ज़्यादा हार्म नहीं हो, ज़्यादा पौधे जो है वो उनकी डेथ ना हो या वो वेस्ट ना हो. ठीक है, तो क्या करना है आपको? सेलेक्ट 2 प्लांट्स फॉर द सेम काइंड. एक जैसे 2 पौधे लेने हैं फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, किसी भी ओपन ग्राउंड से, एंड डिग देम आउट विद रूट्स. और जड़ों से इसको दोनों को खोदना है. टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक. ध्यान रखिए कि उनकी जो रूट्स है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए. प्लांट 1 ऑफ देम इन पोट ए. एक को पोट ए में लगाइए एट लाइक फिगर 7.14 ए. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट. देखिए, लुक एट हियर, ए प्लांट in pot A with the root and a plant in pot B without the root. So other plant and plant it in pot B, figure as like figure 7.14b. water them regularly. इनमें लगातार पानी दीजिए. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक. एक सप्ताह बाद देखिए. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी. क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? बोथ द प्लांट्स आर वाटरेड रेगुलरली. दोनों पौधों में बराबर पानी दिया गया. बट वन इज़ विदाउट रूट्स. लेकिन एक जड़ सहित है. इजंट इट डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड. और दूसरा जो है वो बिना जड़ के था. डज दिस एक्टिविटी हेल्प understand an important function of the root? Yes, we have understand from this activity that the most function of roots are absorption of water from the soil. Let us do an activity to study another function of root. अब हम लोग जो another function है, एक तो हो गया जड़ द्वारा जल अवशोषण, जो another function है
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी, आगे की एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर द फंक्शन, फॉर द नो फंक्शन, फॉर द नो फंक्शन ऑफ रूट्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपको यू विल डू इन द योर नोटबुक the function of leaves, then the function of roots also.